عائشہ کا شوہر فوت پا چکا تھا اور اس کی ایک بچی تھی۔ ایک دن اس بچی کو بہت تیز بخار ہوا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ وہ پریشان ہو گئی تھی اور دعا بھی کرتی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دے اور بچے کے لیے دوائی لا سکے، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور بچی کے لیے دعا بھی لا سکے۔ اکیلی اور کر بھی کیا سکتی تھی، یا رولے یا پھر پریشان ہو جائے۔ غربت ویسے بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، خاص طور پر جب سامنے اولاد بیمار ہو اور ماں کچھ نہ کر سکے۔ وہ بے چینی میں اندر باہر ہو رہی تھی۔ ابھی وہ گھر کے باہر دائیں بائیں دیکھ رہی تھی کہ سامنے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ وہ پاس آ کر بولا، بی بی یہ کچھ پیسے میرے صاحب نے دیے ہیں، ہماری گاڑی پنچر ہو گئی تھی، صاحب کی نظر آپ پر پڑی تو انہیں لگا تو آپ پریشان ہو، بس بہت نرم دل ہے۔ فوراً کہا یہ رقم اس خاتون کو دے آؤ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ عائشہ حیرانی سے کبھی گاڑی کو اور کبھی رقم کو دیکھتی۔ اس نے فوراً رقم لے لی اور بہت سی دعائیں دے کر کہا، اپنے صاحب کو کہنا کہ میں مانگتی نہیں، بس اس وقت مجبور ہوں، بیٹی بیمار ہے اور دعا کے پیسے نہیں تھے، خدا نے آپ کے صاحب کو فرشتہ بنا کر بھیجا ہے، شکریہ ادا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اندر بچی کو اٹھانے گئی۔ بچی 12-13 سال کی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کچھ خوشی کے کچھ شکرانے کے۔ وہ بچی کو باہر لائی اور رشکے کا انتظار کرنے لگی۔ سامنے چودھری صاحب کی گاڑی بھی تقریباً ٹھیک ہو گئی تھی۔ گاڑی والے صاحب جن کا نام فاروق تھا، ان کی نظر عائشہ پر پڑی جو رشکے کے لیے نظریں دوڑا رہی تھی۔ وہ گاڑی لے کر اس کے پاس آئے اور بولے، بی بی بیٹھ جاؤ، ہاسپٹل چھوڑ آتے ہیں۔ عائشہ بہت ہچکچائی، مگر جب انہوں نے کہا کہ بچی کی طبیعت بگڑ جائے گی، جلدی ڈاکٹر کو دکھا لو، تو وہ فوراً بیٹھ گئی۔ فاروق کون تھا؟ ایک بہت امیر آدمی تھا جس کا نام فاروق تھا۔ وہ بڑے شہر میں رہتا تھا جہاں اس کے پاس بہت ساری دولت تھی۔ فاروق کے پاس کئی گاڑیاں، فیکٹریاں اور ایک بنگلہ تھا۔ وہ ہر روز بہت سے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، تقریباً 16 سال کا ہو چکا تھا۔ اسے ایک عجیب سی بیماری تھی۔ اس کے بیٹے کا اچانک ایک ہاتھ مڑ جاتا تھا اور ہزاروں کوششوں کے بعد بھی ٹھیک نہ ہوتا تھا۔ کئی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر دعا سے آہستہ آہستہ خود ہی 3 دن بعد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ فاروق اور اس کی بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کافی زیادہ پریشان اور فکر مند رہتے تھے، کیونکہ ہاتھ کی تکلیف میں وہ بہت زیادہ چیختا چلاتا تھا۔ ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بچوں کو لے کر اب عالموں کے پاس بھی جانے لگے۔ غرض مند و دیوانہ ہوتا تھا۔ یہ دونوں بھی دیوانوں کی طرح بیٹے کی بیماری کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے آتے رہتے تھے۔ ایک بار کسی کے بتائے ہوئے آستانے پر بیٹے کو لے کر گئے، اسے ساری حقیقت بتائی، اپنی پریشانی بھی۔ اس بابے نے بچے کو پہلے اچھی طرح دیکھا، اس کے بازو کو دبا کر چیک کیا، بچے کی آنکھوں میں جھونکا، پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، دراصل اسے نظر بند ہے اور بڑی گہری ہے، اس کو آرام آ جائے گا مگر تھوڑا وقت لگے گا، یا تو اس کی شادی جلد از جلد کر دینا، یا تو ہو سکتا ہے کہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ جب شادی کرو گے تب اسے لے کر آنا میرے پاس، تب میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو پائے گا۔ ہاں، یہ دم والا تیل لے جاؤ، صبح شام اس کے بازو پر ہلکا ہلکا مساج کر دینا، ابھی ایسے ہی کام چلانا، ہاں شادی کے بعد کا عمل پھر بتاؤں گا۔ فاروق اور اس کی بیگم بچے کو لے کر واپس گئے۔ فاروق کو پیسوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، بہت سی نعمتوں کا مالک تھا اور محبوب شخصیت تھا، اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا۔ ایک دن فاروق کے دل میں ایک بڑی سی مشکل پیدا ہوئی، عجیب سی طبیعت رہنے لگی اور نہ ہی اسے سکون تھا، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے مزاج میں بے چینی سی کیسی اور کیوں ہے۔ اس بے نام سی پریشانی کا سبب معلوم کرنے کے لیے اس نے بہت سوچا کیا وجہ ہو سکتی، مگر کوئی سرا نہ ہاتھ آیا۔ آخرکار ایک دفعہ فاروق نے اپنے دوست سے بات کی اور اپنے دل کی حالت بتائی۔ دوست نے فاروق سے کہا کہ شادی 2 ماہ کی پسند کی طرح رہ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ فکر مندی آنے والی پریشانی کو نشانی دے رہی ہو۔ دوست نے اسے کہا کہ وہ کوشش کرے کسی محتاج کی مدد کرے، کسی کے کام آئے، کسی بے سہارا کی مدد کرے، ممکن ہے کہ اسے آنے والی مصیبت ٹل جائے گی اور اس کے دل کو سکون ملے گا۔ فاروق نے اپنے دوست کی بات سنی اور اس بات پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ وہ ہاتھ سے دعا بھی کرتا کہ اس کے ہاتھ سے کسی کی مدد کرے، وہ مولا مجھ سے یہ کام ضرور کرا لے۔ ایک دن وار کے دوران اس نے ایک دکاندار کو دیکھا جس کی چھوٹی سی دکان تھی جس میں مختصر سی چیزیں تھی۔ فاروق نے فوراً اس کی دکان سے جا کر بہت ساری بلا وجہ چیزیں لی۔ وہ شخص بے حد خوش ہو گیا کہ اس کا تقریباً سارا مال بک گیا۔ فاروق صاحب نے اسے کہا کہ میں تمہاری دکان میں اور مال ڈلا دیتا ہوں، میری طرف سے تحفہ سمجھ لینا۔ وہ غریب آدمی خوشی سے بولا۔ اس نے فاروق صاحب کے ہاتھ چومے اور ڈھیروں دعائیں دی۔ فاروق صاحب کے دل کو کچھ تسلی ہوئی مگر مکمل سکون نہ تھا۔ فاروق نے ان غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ انہیں اپنے بیٹے کی دنیال کی بہت فکر تھی۔ اکثر اس کے بازو کا مسئلہ شروع ہو جاتا اور پھر درد سے اس کی بلند واضح چیخیں نکل۔ کئی رات ان دونوں میاں بیوی کو سونے نہیں دیتی تھی۔
वो तेल जो आलम बाबा ने दिया था वो भी ज्यादा देर असर नहीं दिखाता था, बस जरा से दर्द में कमी हो जाती थी, मगर हाथ इसी तरह रहता था। माँ बाप बच्चे का दर्द महसूस करते करते रोते तसल्ली देते, मगर कुछ ना कर सकते थे। अब दनियाल 17 साल का हो चुका था। एक दिन फारूक साहब अपने ऑफिस से घर जा रहे थे कि अचानक एक औरत सड़क क्रॉस करते हुए इनकी गाड़ी से टकरा गई। ड्राइवर ने वक्त पर ब्रेक लगा ली, मगर इसको गाड़ी और वो सड़क पर गिर गई। फारूक साहब घबराए हुए तेजी से गाड़ी से उतरे और जल्दी से इस औरत को सहारा दिया। इसे चोट तो आई थी, मगर इसे अपने से ज्यादा वहाँ बिखरे हुए सालन का गम था जो वो बाजार से लेकर घर जा रही थी। इसे अपनी बच्ची के खाने की फिक्र थी। इसके माथे पर खून निकल रहा था, गो के बहुत ज्यादा नहीं था, मगर तकलीफ थी। वो बार बार कमर पर हाथ रख के कह रही थी कि मेरा सालन गिर गया, मेरी बच्ची भूखी रहेगी। अब ये क्या किया? फारूक साहब ने तसल्ली देते हुए गौर से इसे देखा तो वो वही आयशा थी। इसके घर से कुछ फासले पर फारूक साहब की गाड़ी का टायर बदलते हुए आयशा को बीमार बच्ची के पैसे दिए थे और फिर इन्हें हॉस्पिटल भी छोड़कर आए थे। पास खड़ा ड्राइवर भी पहचान चुका था। फौरन बोला, सर ये तो वही खतून है, याद है कुछ दिनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। फारूक साहब ने हाँ में सर हिलाया और बोले, बीवी मैं आपको इससे ज्यादा सालन लेकर देता हूँ, आप मेरे साथ मरहम पट्टी के बाद आपको ज्यादा सालन लेकर घर छोड़ दूंगा। आयशा को इस वक्त सिर्फ खाने की फिक्र थी जो वो अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही थी। हाँ साहब, खुदा के लिए मुझे सालन ले देना, मेरी बच्ची काल की भूखी है, बड़ी मुश्किल से पैसे मिले थे इसलिए खाना लेने जा रही थी। वो गाड़ी में बैठते हुए बोल रही थी, हाँ फिक्र करवा भी लेकर चलते हैं। वो इसे लेकर करीबी डॉक्टर के पास चले गए, सारा चेकअप करवाया, मरहम पट्टी भी करवाई और दवाई लेकर गाड़ी में बिठाया। उसके बाद फारूक साहब ने एक होटल से तीन चार किस्म के खाने और नान पैक करवाई और गाड़ी में बैठते हुए आयशा से कहा कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के लिए काफी सारा खाना पैक करवा लिया है, अब ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? इसने जगह बताई और शुक्रिया अदा किया। फारूक साहब ने इसे अपना पुराना वाकया याद करवाया। अब आयशा को ये सब याद आ गया। इसने कहा कि आप हमेशा फरिश्ता बन के मेरी मुश्किल वक्त में आते हैं। साहब नहीं, इस बार तो मेरी गाड़ी ने तुम्हें जख्मी कर दिया था। फारूक साहब ने हंसकर कहा, मगर साहब इन जख्मों ने मेरे 2-4 दिन की फिक्र खत्म कर दी। इतना बहुत सा खाना हम दोनों माँ बेटी के लिए बहुत है, बच्ची पेट भरकर खाना खाएगी और मेरा हर दर्द खत्म हो जाएगा। आप तो मसीहा है। आयशा ने रोती हुई आवाज में कहा, अच्छा तुम्हारा शोहर क्या करता है और घर में और कौन कौन है? पुरानी सी गली के करीब पहुंचकर फारूक साहब ने पूछा, शोहर होता तो मैं यूं मारी ना फिरती। साहब बच्ची के सर से बाप का साया पहले से ही उठ गया था, ससुराल वालों ने यह कहकर निकाल दिया, बेटा नहीं रहा तो तुमसे क्या रिश्ता, माँ बाप होते तो पास रख लेते, बस खुदा तरस आदमी ने एक कमरा दे रखा है, घरों में काम करके जो कुछ मिलता है इससे वो कुछ कमरे का किराया दे देती हूँ। कुछ बल इस बार पैसे जल्दी खत्म हो गए थे, महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। ना जी बस यहाँ पर ही उतार दे, इस गली में कमरा है। वो एकदम बोली, गाड़ी रुक गई। बोले ये कार्ड रख लो, यार फोन नंबर लिखा हुआ है, 2 दिन बाद मुझसे फोन करना, 2 दिन बाद मुझे फोन करना, मैं बेगम साहिबा से बात करता हूँ, घर के काम के लिए एक चाहिए थी, तुम्हारा भी मसला हो जाएगा और हमारी बेगम साहिबा का भी। फारूक साहब ने कार्ड देते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी रहायश का बंदोबस्त कर दूंगा। आयशा कार्ड लेकर शुक्रिया अदा करते हुए बोली, खुदा की हर परेशानी दूर फरमाए, और चली गई। ड्राइवर और फारूक साहब भी अपने बंगले की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ड्राइवर ने पूछा कि सर बेगम साहिबा के पास तो काम करने के लिए है, फिर आपने क्यों कहा कि इन्हें जरूरत है? फारूक साहब बोले, हाँ जानता हूँ, लेकिन आयशा काफी परेशान और जरूरतमंद लग रही है, इस तरह इसकी रहायश का मसला हल हो जाएगा और घर में भी कोई ना कोई काम निकल ही आते हैं, देख लूंगा। फारूक साहब ने अपनी बेगम को सारी बात बताई और कायल किया, इससे सर छुपाने के लिए डेरे पर जो खाली क्वार्टर है दे देते हैं और इसकी बेटी को मैं स्कूल में डाल देंगे। पहली 5 जमातें पढ़ी थी, फिर हालात की वजह से छोड़नी पड़ी, घर के कामों में लगा लेना, खुदा ने हमें बहुत दिया है, पता नहीं कि नसीब का हम खा रहे हैं। इनकी बेगम भी खावन की तरह नरम दिल की मालिक थी। कुछ देर सोचने के बाद बोली, ठीक है आप इन्हें बुलवा ले, मैं दूसरी मुलाजमा से कहूंगी कि इसे सारा काम समझा दे। अगले दिन फारूक साहब का ड्राइवर आयशा को बताया कि फारूक साहब ने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है, तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और क्वार्टर भी। चौधरी साहब बहुत नरम दिल है और इनकी बेगम भी तकरीबन ऐसी ही है, ऐश करोगी तुम वहाँ। अच्छा मैं 2 दिन बाद तुम्हें लेने आऊंगा, तुम अपना सामान बांध लेना, टूटा फूटा यही रहने देना, क्वार्टर में सामान है। वह कह कर चला गया। आयशा सिर्फ जी करती रही, इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। खुदा इस तरह भी मेहरबान होता है, बैठे बिठाए हर मुश्किल का हल निकाल दिया। वो अंदर आई और वजू करके शुक्राने के नफल पड़े, बेटी को सारी बात बताई और कहा, अब हमें पैसों की कोई फिक्र ना होगी, अल्लाह ने ऐसा सबब पैदा कर दिया है कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो दोनों खुशी खुशी सामान पैक करने लगी। सारी फालतू चीजें टूटी फूटी उन्होंने कबाड़ में भेज दी। अब मुख्तसर सा सामान था। 2 दिन गुजर जाने के बाद ड्राइवर फिर आया और बताया, मैं आपको लेने आया हूँ। दोनों गाड़ी में सामान रखकर कमरे के मालिक को पहले ही बता दिया था और खुशी खुशी ड्राइवर के साथ आ गई। गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने रुकी। आयशा और इसकी बेटी की आंखें फटी के फटी रह गई। 2 मिनट बाद ही एक बड़ा सा दरवाजा खुला और गाड़ी अंदर चली गई। दोनों माँ बेटी हैरत से मुंह खोले दाएं बाएं देख
देख रही थी। दाएं बाएं काफी बड़ा बाग था जिसमें सब्जा ही सब्जा था। तरह तरह के फूल खिले हुए थे। खूबसूरत दरख्त और मुख्तलिफ किस्म के गमले दीवारों पर लटक रहे थे। आयशा की बेटी जिसका नाम साइमा था, इसने पहली बार ऐसी कोई जगह देखी थी। आयशा के लिए यह तो अलग ही दुनिया थी, मगर वो बड़े बड़े लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। इनका रहन सहन कैसा होता है, लोगों के घरों में काम करके और बातें सुनकर बहुत कुछ पता चल जाता था। गाड़ी से उतरकर दोनों मुंह उठाकर इधर उधर देख रही थी। लॉन में चौधरी साहब और इनकी बेगम बैठे हुए चाय पी रहे थे। उन्होंने ड्राइवर को आवाज दी कि इधर ही ले आओ। ड्राइवर आयशा और इसकी बेटी को इधर ले आया। करीब पहुंचकर दोनों ने अदब से सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो साइमा? फरूक साहब ने आयशा की बेटी का हाल पूछा और साथ ही अपनी बेगम को बताया, ये है आयशा और इसकी बेटी साइमा। इस दिन मेरी कार से यही टकराई थी, जख्म भर गया है आयशा? उन्होंने आयशा से देखते हुए कहा, जी सर काफी बेहतर हो गया है, बस अब तो हल्की दर्द है और बस निशान बाकी रह गया है। आयशा ने बड़े अदाब से जवाब दिया। बेगम साहिबा ने भी दोनों का हाल पूछा और इधर उधर की चंद बातों के बाद ड्राइवर को कहा कि इन्हें ले जाकर अपने डेरे का वो क्वार्टर दिखा दो ताकि ये सामान रख सके। आयशा और साइमा ने दोनों ने शुक्रिया अदा किया और ड्राइवर के साथ वापस गाड़ी में बैठ गई। फरूक साहब का डेरा कुछ ही फासले पर था। गो के आयशा के लिए यह पैदल का रास्ता था, मगर बड़े लोगों की बातें, लोग गाड़ी पर ही आते जाते थे। यह डेरा भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा था। ड्राइवर इन्हें अंदर ले गया। खूबसूरत जगह थी, एक बड़ा सा कमरा था, साथ ही एक और कमरा था, अटैच बाथ और कुछ फासले पर किचन था। बड़ा सा लॉन जिसमें खूबसूरत फूल लगे थे, एक प्यारा सा झूला जिसे देखकर साइमा के होंठों पर खुद ही मुस्कुराहट आ गई। वो चीजें रखकर फौरन झूले पर बैठ गई। अब ड्राइवर जा चुका था। उन्होंने एक जगह अपना सामान रखा और फिर दोनों ने पूरे क्वार्टर को घूम फिर कर देखा। इतना बड़ा, इतना साफ सुथरा, इनकी तो लॉटरी निकल आई थी। नया बेड, नया सामान, किचन में भी सब जरूरत की चीजें मौजूद थी। इनकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने पूछा कौन? तो ड्राइवर ने बताया कि बीबी कुछ खाने पीने का सामान लाया हूँ। आयशा ने दरवाजा खोल दिया। ड्राइवर ने किचन में काफी सारी सब्जियां, गोश्त और चाय पत्ती और उसका सामान, जरूरी काफी चीजें रख दी और बोला बीबी आपके काफी दिन चल जाएंगे सामान, तब तक तुम्हें इन जगहों का पता भी चल जाएगा, फिर जाकर खुद ही चीजें ले आना। यहाँ कुछ ही फासले पर बाजार है, जरूरत की तमाम एशिया वहाँ मिलती है। एक क्लिनिक भी है, कुछ कभी दुआ की जरूरत हो तो बिला झिझक ले आना। जाते जाते वो रुक कर बोला, हाँ याद आया, साहब ने ये मोबाइल तुम्हारे लिए भेजा है। साहब ने कहा था कोई जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल कर लेना। आयशा ने खुशी से फोन लिया और कहा बेगम साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करना, ये लोग तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं, खुदा इन्हें बहुत नवाजे और बहुत सारी खुशियां दे। ड्राइवर आमीन कहकर चला गया। आयशा ने कुंडी लगाई और अंदर आकर साइमा को मोबाइल दिखाया। दोनों काफी देर इसमें देखते रहे। फिर दोनों ने मिलकर फ्रिज में चीजें रखी और बाकी सामान समेटा। नरम नरम बिस्तर पर लेटकर सुकून से कुछ देर दोनों सोंगी। आयशा की आंख जल्दी खुल गई। इसके जहन पर सवार था कि अभी हांडी भी बनानी है। ऐसी सुकून भरी नींद शायद इसे कभी आई हो। इसने उठकर एक लंबी सी गड़ाई ली, जैसे अपनी सर्दियों की थकन को उतारा और किचन में जाकर हांडी बनाने लगी। शाम भी इसी तरह गुजर गई। रात का खाना खाकर दोनों देर तक बातें करती रही। अब अगले दिन इन्हें साहब के बंगले में जाना था। अब तो जो भी काम देगे मैं करूंगी। आयशा ने बेटी से कहा, साहब ने अब बार इतनी मेहरबानी की है, इनका एहसान है, हम इनका काम दिल लगा कर करना चाहते हैं। बिल्कुल अम्मा, ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। साइमा ने माँ की गोद में सर रखते हुए कहा। काफी देर बातें करने के बाद दोनों माँ बेटी सो गई। सुबह उठकर नाश्ते से फारग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और आयशा ने जाकर देखा तो सलाम बीबी, आ जाओ, मैं आपको लेने आया हूँ। ड्राइवर ने सलाम कहा था। हाँ मैं तैयार हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं साइमा को लेकर आती हूँ। आयशा ने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा और जल्दी से अंदर जाकर अपनी बेटी से कहा कि बाहर गाड़ी हमें लेने आ चुकी है, चलो साहब की तरफ जाना है। आयशा ने फोन पकड़ा और क्वार्टर को ताला लगाकर दोनों बाहर निकल आई। गाड़ी में जाकर जल्दी फरूक साहब की तरफ पहुंच गई। सीधा बेगम साहिबा के पास गई ताकि घर का काम समझ सके। बेगम साहिबा ने हाल हवाल पूछा कि कोई मसला तो नहीं, रात आराम से गुजरी, सब चीजें मिल गई थी। उन्होंने आयशा से मुस्कुराते हुए पूछा, जी जी बेगम साहिबा, अल्लाह का बहुत एहसान है जो आप जैसे सखी दिल वालों से मिलवा दिया, सब कुछ मिल गया, बहुत शुक्रिया। अब आप हमें बता दें हमें क्या करना है। आयशा ने बड़े एहतराम से इन्हें कहा, हाँ आयशा तुम मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, कल ही धुले हैं, और साइमा को अपने साथ ही लगा लो, इसे घर में ही पढ़ाने का इंतजाम कर देंगे। अभी कपड़े हैंगर में लटकाना सिखा दो, फिर किचन का थोड़ा सा काम है वो बाद में करना, सब्जी पड़ी है साइमा से वो भी बनवा लेना। बेगम साहिबा ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी बहुत अच्छा, अभी कर देती हूँ। बेगम साहिबा ने एक और मुलाजमों को साथ भेजा कि घर दिखा दे। आयशा जल्दी जल्दी काम करने लगी। आधा दिन गुजर गया, सारा काम हो चुका था। आयशा ने बेगम साहिबा को बताया कि वो अब फ्री हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब बेशक चली जाओ, क्वार्टर में अगर कोई जरूरत होगी तो फोन कर दूंगी। जगह का तो पता चल गया है ना, तियो या गाड़ी छोड़ आए। नहीं नहीं, हम खुद चले जाएंगे, रास्ता समझ आ गया है। दोनों सलाम करके चली गई। बेगम साहिबा ने इन दोनों का किया हुआ काम देखा और इन्हें बहुत पसंद आया। वो समझ गई कि ये काम कर सकती है। अब दोनों रोज सुबह आती और अक्सर शाम को वापस जाती थी। कभी कोई काम होता था, इस दौरान बेगम साहिबा ने साइमा के लिए
लिए एक टीचर का भी बंदोबस्त कर दिया। वो अच्छी टीचर थी, तकरीबन 2 घंटे पढ़ा कर जाती। साइमा बड़े शौक से पढ़ती थी, इसे पढ़ने का शौक था, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में वसाइल होने की वजह से अपने शौक का इजहार अपनी माँ से ना करती थी, कहीं माँ किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब अल्लाह ने इसलिए खुद ही खुशी का रास्ता निकाल दिया था, तो वो क्यों ना इससे फायदा उठाती। तेजी के साथ साथ पढ़ाई में आगे से आगे बढ़ने लगी थी। इसकी टीचर भी हैरान थी कि वो कितने शौक से पढ़ती है और कितना अच्छा याद कर लेती है। आयशा इसे पढ़ता देख कर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती और अपने मालिकों की मेहरबानी पर रश्क करती थी। उनके हालात भी काफी अच्छे हो गए थे। एक आयशा ने एक दिन बाहर नोट की थी कि छोटे चौधरी आदिल साइमा को आते जाते देखते हैं, मगर कभी कोई बात ना की थी। ऐसी नजरों को आयशा समझती थी, ऐसी नजरों में प्यार पसंदीदगी थी। चंद बार काम की गर्ज छोटे साहब के कमरे के पास से गुजरते हुए इसने अजीब सी चीखों की आवाज सुनी थी। इसने बेगम साहिबा से पूछा भी था। इन्होंने कहा कि फिल्म लगा कर बैठा होगा, कोई खास बात नहीं। आयशा ने सोचा कि इनके मामले में नहीं बोलना चाहिए। साइमा काफी कुछ सीख चुकी थी। रूख साहब अक्सर इसकी जहानत की तारीफ करते थे। वो भले ज़हन थी मगर मासूम थी, दुनिया के निश्तो अफराज से वाकिफ ना खिलती कली थी। अदील जब भी लोन में बैठता होता इसकी नजर साइमा पर होती, मगर कभी इसने कोई गलत हरकत नहीं की थी, ना ही कभी इससे कोई बदतमीजी की थी। अच्छा, ये सब देख कर बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी। अपनी बेटी को इस बंगले की मालकिन के रूप में देखने की ख्वाहिश इसके दिल में जागने लगी। वो दुआ करती कि काश बेगम साहिबा को भी वो सब नजर आ जाए जो वो देख रही थी। साइमा अपने में मस्त थी, वो हर वक्त किताब साथ ही होती थी। कुछ काम अपनी माँ के साथ करवा भी देती थी और फिर किताब लेकर बैठ जाती। पढ़ना इसका पसंदीदा काम था। कभी कुछ समझ ना आता तो वो छोटे साहब यानी अदील से पूछ लेती। अदील बड़े तवज्जो से इसका मसला हल कर देता। वो बहुत शुक्रिया अदा करके उठ जाती। बेगम साहिबा इससे काम ही काम करवाती थी। अब वो भी ये चाहती थी कि अगर इसे शौक है, दोनों जब वहाँ से फारग होकर अपने क्वार्टर जाती तो खाने से फ्री होकर दिन भर की बातें एक दूसरे से शेयर करती थी। साइमा के मुंह से आयशा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी जिससे जाहिर हो कि वो अदील को पसंद करती है, या फिर अदील ने कभी इसका हाथ पकड़ा हो या कोई इशारा आता इजहार पसंदीदगी किया हो। शायद साइमा ऐसी फीलिंग से आजाद। आयशा ने सोचा मासूम है, अभी मेरी बेटी को बाहर की दुनिया का नहीं पता। अगर इतने बड़े घर में इसकी शादी हो जाए तो हमारी तो किस्मत बदल जाएगी। अब आए दिन से आयशा देखने लगी, लेकिन इसने इजहार कभी किसी पर नहीं किया था। एक दिन वो अचानक काम करते करते बेगम साहिबा ने इसे बुलाया कि मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। वो इनके साथ चली गई। उन्होंने आयशा को अपने पास बिठाया और बातें करते उन्होंने अपने अदील के साथ हाथ मांग लिया। आयशा का तो मुंह खुले का खुला रह गया और इसे अपने कानों पर ही नहीं आ रहा था। जो ख्वाब वो देख रही थी वो इस तरह पूरा होगा, वो भी बगैर मना से कुछ भी ना करना पड़ेगा। बेगम साहिबा ने खुद ही इसकी ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। आयशा के दिल में पता नहीं कब से चल रही थी। आयशा ने हैरानी से पूछा, बेगम साहिबा आप क्या कह रही है? आप कहाँ और हम कहाँ? हमारा कैसा जोड़ और आप सोच समझ कर ये बात कह रही है। आपने साहब से पूछा है ये कैसे मुमकिन है? अंदर ही अंदर आयशा के दिल में लड्डू फूट रहे थे, मगर फिर वो अपने कानों से सुनी गई बात पर यकीन करना चाहती थी। हाँ भाई, मैंने फरूक से खुद ही बात की है, वो भी राजी है। बाकी अमीरी और गरीबी इंसान के अपने हाथ में तो नहीं है, ये तो सब खुदा की मर्जी है। किसी को बहुत दे देता और किसी को कम देता। बस इंसान का अखलाक अच्छा होना चाहिए, जानदार हो, अखलाक वाला हो, क्या रखने वाला हो। हमारी बेटी में ये सारी खूबियां हैं। आखिर इतने अरसे से तुम हमारे साथ हो। मैंने हमारी बेटी में बहुत सारी खूबियां देखी है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें साइमा जैसी बहू चाहिए। तुम कुछ ना सोचो और अब बस हाँ कह दो ताकि शादी की तैयारियां शुरू हो जाए। बेगम साहिबा ने एक सांस में ऐसे सारी बात बता दी। वो तो ठीक है बेगम साहिबा, आप बात सर आंखों पर। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे अजीम लोगों की बहू मेरी बेटी बनेगी। मगर क्या आपने छोटे चौधरी साहब से भी इस बारे में बात की है? इनकी मर्जी पूछी है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाँ कर दूं और इन्हें इस बात पर एतराज हो। आप पहले इनकी मर्जी पूछ लें। मेरी तरफ से तो आप हाँ ही समझे, बाकी आप जैसा कहेंगी जो कहेंगी वैसा ही होगा। बस आप मेरी तसल्ली के लिए इनकी मर्जी मालूम कर ले, हम तो आपके गुलाम हैं। आयशा ने बेगम साहिबा जल्दी से हाथ पकड़ के चूम लिया। आयशा की खुशी की इंतहा ना थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो पूरे शहर में शोर मचा दे कि मेरी बेटी इतनी बड़े घर की बहू बनने लगी है। इसके लिए तो आज जैसे ईद का दिन था। बेगम साहिबा ने हंस कर कहा, वैसे मैंने आदिल से बात कर ली थी, लेकिन वो तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार फिर से पूछ लेती हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं बात करके तुम्हें बताती हूँ कि इसने क्या जवाब दिया है। उन्होंने इसकी बात देखते हुए कहा, जी हाँ मैं तो बिल्कुल अब भी राजी हूँ। आयशा ने भी इनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर दिया। आयशा ने अपने क्वार्टर जाते ही साइमा को यह खुशखबरी सुना दी। वो हगा बगा अम्मा की शक्ल देखने लगी। ये क्या कर रही हैं अम्मा? वो तो सब लोग हैं और हम भला कैसे मुमकिन है? इसने हैरत का इजहार किया। सब मुमकिन है, अल्लाह बड़ा कारसाज है। देने पर आए तो दिल खोल कर देता है। ना देखता है कि पुन लगे कपड़े पहनने वाले देखो देखता है या खमवा पहनने वाले को। इसका काम तो बस देना है, किसी की भी जोली भर दे। आयशा ने प्यार से बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उन्होंने खूब बातें की और सो गई। अगले दिन चौधरी साहब के घर जाते हुए दोनों के जज्बात में एक अजीब तरह की जचक थी। साइमा अपने तौर पर एक शर्मीली सोच में थी और आयशा की खुशी को एंजॉय कर रही थी। आयशा हस्बे मामूल अपने कामों में लग गई, मगर साइमा को काम करने से बेगम साहिबा ने मना कर दिया, बल्कि इससे कहा कि तुम बैठ कर पढ़ो, तुम कोई काम न करो।
साइमा को और क्या चाहिए था, इसे तो पहले ही पढ़ने से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और इसने किताबें पकड़ी और लॉन में बैठ गई। बेगम साहिबा ने इसे 2-4 किताबें और ताकि वो इम्तिहान की तैयारी जल्दी से कर सके। आयशा जब चाय बना रही थी, बेगम साहिबा ने उसे अपने पास बुलाया और अपने सामने कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी तसल्ली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैंने तुम्हारी तसल्ली की खातिर अदील से बात की है। इसे कोई एतराज नहीं, बल्कि वो तो खुश हुआ था। मुझे लगता है कि ये इसे पसंद है। अब तुम ऐसा करो कि इन सब बातों को छोड़ दो और कुछ अच्छे कपड़े अपने लिए बना लो। साइमा के लिए मैं खुद ले लूंगी, तुम्हारे सामने सब कुछ है। अल्लाह का दिया इतना है कि किसी चीज की जरूरत नहीं। आयशा ने खुशी से कहा, जैसा आप कहे, मैं आज से ही तैयारियां शुरू करती हूँ। वो उठकर जाने लगी तो बेगम साहिबा ने कहा, रुको, मेरे ख्याल में अगले हफ्ते यहाँ ही शादी हो जाए। हाँ, सबके सामने मुझे आप ही कह लिया करो। बुरा लगता है बेगम साहिबा कहना, वो साइमा को भी समझा देना। बेगम साहिबा ना कहे, जी बेहतर आप जैसा समझे, जी बेहतर जैसा आप कहे। बेगम साहिबा, नहीं आप ही। वो मुस्कुराकर बोली और चली गई। आयशा के हाथ पांव फूलने लगे। अच्छा है कोई दड़का नहीं रहेगा, इसने सोचा, घर जाकर इसकी बेटी को बताऊंगी। और वो हैरान परेशान होगी, अम्मा इतनी जल्दी, उन्होंने वो कर लेना है, मैं बात अभी हमें इनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। और हाँ, मुझे याद आया कि बेगम साहिबा, मतलब आप ही ने कहा है कि आपके काम पर आना, साइमा को भेज देना। एक हफ्ता तो रह गया, मुनासिब नहीं लगता। अब हम हर रोज बाजार जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे। आयशा ने बेटी को गले लगाते हुए कहा। तैयारियों में ये दिन बहुत तेजी से गुजर गए। शादी से एक रात पहले मसरूक फरूक ने आयशा को बुलवा कर कहा, क्योंकि अब साइमा इस घर की बहू बन रही है, तुम्हें एक वादा करना होगा। वो क्या आईपी? आयशा के दिल जोर से धड़कने लगा। वो ये कि अब तुम मेरे घर नहीं आओगी, देखो मुनासिब नहीं लगता। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, घर बैठे तुम्हें तनख्वाह इसी तरह मिलती रहेगी। जिस चीज की जरूरत होगी पूरी कर दी जाएगी, सिर्फ एक शर्त है। हमारी आयशा फटी नजरों से इन्हें देखने लगी। एक ही एक बेटी और इससे भी ना मिलूं। तो इसने सोचा, मगर बेटी के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर कोई खामोशी से मान गई। दिल बहुत रोया, मगर आंसू पर काबू पा लिया। घर जाकर बेटी को बड़ी मुश्किल से इसे बात पर राजी किया। शादी होगी। आयशा ने दुआओं और आंसुओं में बेटी को रुखसत किया। यूं कहो बेटी को छोड़कर खुद रुखसत हुई। आयशा उदास रहने लगी, मगर बेटी की और बेगम साहिबा की बात रखते हुए इसने कभी भी बेटी से राब्ता करने की कोशिश ना की। मगर एक दिन दिल इतना बेताब हुआ कि इससे भी रहा नहीं गया। इसने रूप बदलकर चौधरी साहब के घर जाने का सोचा। इसने बकारन का रूप डालकर वहां जाने की ठानी। वो वाकई बकारन लग रही थी। चौधरी साहब के घर का गेट खुला ही था, वो अक्सर ही खुला रहता था। वो अंदर चली गई, मगर देखकर इसकी जान निकल गई कि घर के बीच में इसकी बेटी जमीन पर बैठी है। इर्द गिर्द बहुत से बकरे की सिरियां पड़ी हैं। इसके सामने छोटे चौधरी साहब यानी इसका मियाँ बैठा है। एक साइड पर चौधरी फरूक और बेगम साहिबा खड़े हैं। एक आमल बाबा साइमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाता जा रहा था और कुछ पढ़ करके इसके सामने बर्तन पर फूंक मारता जाता। इस बर्तन में शायद पानी था। आयशा छुप कर यह मंजर देख रही थी। कुछ देर बाद आमल ने वो बर्तन उठाया और इसके पानी से छोटे चौधरी के बाजू को गीला किया। फिर वो बर्तन वापस इसी जगह पर रख दिया। 2-3 बार ऐसा करता रहा और बाजू पर पानी डालता रहा। आयशा को वहां पर खड़े घंटा गुजर चुका था। इसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक एक मुलाजिम बाहर से अंदर जाने लगा। आयशा ने फौरन से रोका और एक तरफ से लेकर जाकर अपना चेहरा दिखाया और मिन्नत की कि इस रात पर पर्दा उठाए, इससे सच बताए। तब इस मुलाजिम ने बताया कि चंद साल पहले एक आलम ने कहा था, साहब के बाजू ठीक होने और नजर बंद उतारने, शादी के बाद इसकी बेगम पर अमल किया जाए तो साहब ठीक हो सकते हैं। इसीलिए चौधरी साहब ने जल्दी से शादी की और तुम्हें यहाँ आने पर मना किया कि तुम भी माँ हो, बेटी को इस तरह नहीं देख सकोगी। मगर सच पूछो तो ये नेकी है। अगर वाजिब ठीक हो गए तो तुम्हारी बेटी की बहुत कदर बढ़ जाएगी। बस दुआ करो साहब ठीक हो जाए। वो कहकर चली गई और आयशा की जिंदगी के इस खेल पर हैरान थी। बस अब दुआ ही थी। अपनी बेटी के लिए वो चुप कर वापस चली गई। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद सबकआमूज़ कहानियां वाक़या सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।